Assalamu alaikum. Welcome to my channel Quick Knowledge by Meera Fatma. Today's our topic is submandibular salivary gland. Let's start it. Bismillahirrahmanirrahim. So our topic is submandibular salivary gland. Submandibular salivary gland is a gland of the mixed variety. That means what it means of the mixed variety. Mixed variety means that it contains both serous as well as the mucus acini. So, what is the situation of the submandibular salivary gland? Submandibular salivary gland, it is present in the anterior part of the digastric triangle. We know that digastric triangle is a part of the anterior triangle that is situated behind the submental triangle. So, what is the size and weight of this triangle? This gland, sorry, the size of this gland is the size of a walnut. Okay, and it weighs about 15 to 20 gram. What is the shape of this gland? This gland is J shaped. J means like this. This is the shape of this gland. Why is it J shaped? It is J shaped because it is indented by the posterior border of the mylohyoid muscle. Okay, posterior border of the mylohyoid muscle divides it into a larger part, which is the superficial one, and a smaller part, which is the deeper part that lies deep to this mylohyoid muscle. Then coverings. What are the coverings of this gland? We know that this gland is covered by the deep cervical fascia. So deep cervical fascia की two layers होती हैं जो इस gland को cover करती हैं. One is the superficial layer and other one is the deep layer. Superficial layer covers the inferior surface of the gland and the deep layer covers the medial surface of the gland. So the superficial surface, after covering the inferior surface of the gland, itself gets attached to the base of the mandible. And the deep layer that covers the medial surface of the gland, after covering the medial surface of the gland, it is itself attached further to the mylohyoid line of the mandible. राइट सो हमने अभी बात की कि हमारे पास जो माइलोहाइड मसल का पोस्टीरियर बॉर्डर था उसने इस ग्लैंड को लार्जर सुपरफिशियल पार्ट में और आपके पास स्मॉलर डी पार्ट में डिवाइड किया था. सो नाउ विल स्टडी अबाउट द सुपरफिशियल पार्ट ऑफ द ग्लैंड. सो बुक में कहा गया है कि जो सुपरफिशियल पार्ट है वो क्या करता है, फिल्स कर देता है डायगैस्ट्रिक ट्राइंगल को. अब इसकी कुछ एक्सटेंशंस होती हैं, ऊपर की तरफ एक्सटेंड करता है और नीचे की तरफ एक्सटेंड करता है. तो ऊपर की तरफ कहाँ पे ये एक्सटेंड करेगा, हमें पता है सुपरफिशियली पार्ट है तो माइलोहाइड के भी सुपरफिशियल पड़ा हुआ है. ऊपर हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, मैंडिबल है, तो ये डीप टू द मैंडिबल जाता है, बट मैंडिबल में भी बस अप टू द माइलोहाइड लाइन तक जाएगा. देन यू हैव द इन्फीरियर पार्ट. इन्फीरियर पार्ट हमें पता है कि डायगैस्ट्रिक ट्राइंगल की जो होती है पोस्टीरियर बाउंड्री, जो पोस्टीरियर सुपीरियर बाउंड्री होती है, वो आपके पास स्टाइलोहॉयड और पोस्टीरियर बेली ऑफ द डायगैस्ट्रिक मसल बना रहे होते हैं. तो इन्फीरियर पार्ट जो होता है सुपरफिशियल पार्ट का, जो इन्फीरियरली जो एक एक्सटेंड कहाँ पे कर रहा होता है, स्टाइलोहॉयड को ओवरलैप करेगा और पोस्टीरियर बेली ऑफ डायगैस्ट्रिक को ओवरलैप करेगा. राइट, देन इट हैज़ थ्री सरफेसेस. सुपरफिशियल पार्ट हैज़ थ्री सरफेसेस: इन्फीरियर सरफेस, लैटरल सरफेस एंड वी हैव द मीडियल सरफेस. इसको याद करने के लिए एक ट्रिक थी, इल्म हासिल कर रहे हैं ना, मैं आपको वीडियो ये बना के भेज रही हूँ, हम इल्म हासिल कर रहे हैं. तो इसकी निमोनिक थी हमारे पास इल्म. आई फॉर इन्फीरियर, लैटरल एंड मीडियल सरफेसेस किसकी होती हैं, सुपरफिशियल पार्ट की. राइट, सो नाउ हम क्या करेंगे, ये डायग्राम है. दिस इज़ द मैंडिबुलर सबमैंडिबुलर ग्लैंड. This is its larger one superficial part and this is its smaller deep part, and this is divided into superficial and the deep part by this posterior border of the mylohyoid muscle. This is the mylohyoid muscle. This is the submandibular gland, sublingual gland. This is the hyoglossus muscle. This is the genioglossus muscle. This is the geniohyoid and the anterior belly of the gastric, and this one is our submandibular gland. So now we have to study about this relations of the superficial part. अभी हमने पढ़ा था कि superficial part को की तीन surfaces होती हैं. inferior surface, we have the lateral surface and we have the medial surface. So जो inferior surface होती है वो towards forward होती है, forward की तरफ प्रोजेक्ट करते हैं. हमें पता है आगे की तरफ क्या है, हमारे पास स्किन है. स्किन, हम स्किन की बात करेंगे. फिर हमें पता है कि पास जो स्किन है उसके नीचे जो नेक के लेवल पे जो हमारे पास सुपरफिशियल फेशिया बना रहा होता है, सुपरफिशियल फेशिया में एक मसल होता है, उसे हम क्या कहते हैं, प्लेटिसिमा. और फिर एक और चीज़ है, प्लेटिसिमा मसल को फेशियल नर्व सप्लाई कर रही होती है. ठीक है, उसकी सर्वाइकल ब्रांच, तो हम कहेंगे इसकी सर्वाइकल ब्रांच भी हमारे पास जो है वो इन्फीरियर सरफेस के रिलेशंस में आ रही है आपके पास. ठीक है,
फिर हम कहेंगे अबाउट डीप फेशिया, सुपरफिशियल फेशिया के बाद डीप फेशिया आ जाता है हमारे पास। डीप फेशिया के बाद आपके पास क्या आएगी, फेशियल वेन और सबमेंडिबुलर लिम्फ नोड्स, ठीक है। सो इन्फीरियर सरफेस के रिलेशन हमने क्या पढ़ लिया, हमारे पास स्किन होती है, स्किन के अंदर हमें पता है जो सुपरफिशियल फेशिया ऑफ द नेक है उसमें हमारे पास मसल होता है प्लेटिज्मा, और उस मसल को सप्लाई करी होती है सर्वाइकल ब्रांच ऑफ द फेशियल नर्व। देन हमें पता है सुपरफिशियल फेशिया के बाद डीप फेशिया आता है, ठीक है। और दो चीज़ें हैं, फेशियल वेन और सबमेंडिबुलर लिम्फ नोड, जो कि इन्फीरियर सरफेस के रिलेशंस में आ रहा है। देन हमारे पास आ जाती है लैटरल सरफेस। तो लैटरल सरफेस हमें पता है साइड पे होगी, ठीक है, टुवर्ड्स लैटरल साइड। तो क्या होगा हमारे पास यहाँ पे सबमेंडिबुलर फोसा होगा, ठीक है, ऑन द मैंडिबल। देन आपके पास मीडियल टेरिगोइड मसल की क्या होगी, इंसर्शन होगी, इंसर्शन ऑफ द मीडियल टेरिगोइड मसल और फेशियल आर्टरी। अब इंसर्शन ऑफ द मीडियल टेरिगोइड कहाँ पे होती है, मीडियल सरफेस ऑफ द एंगल पे होती है, ठीक है। जो आपके पास जो एंगल ऑफ द मैंडिबल है उसके मीडियल सरफेस पे, और एडजॉइनिंग जो रेमस ऑफ द मैंडिबल होगा वहाँ पे। तो लैटरल सरफेस के रिलेशन में क्या आ गया हमारे पास, सब मैंडिबुलर फोसा, वी हैव द इंसर्शन ऑफ द मीडियल टेरिगोइड एंड देन यू हैव द फेशियल आर्टरी। देन हमारे पास मीडियल सरफेस रहेगी, हमारे पास कितनी सरफेस थी, 3 सरफेस, इन्फीरियर, लैटरल और मीडियल। तो अब हम मीडियल सरफेस के बारे में अगर बात करें तो मीडियल है ना, इसे हम ऐसे याद करते हैं, मीडियल एम से बन रहा है तो ये मसल्स के रिलेट कर रही होती है आपके पास, ठीक है, एम फॉर मीडियल, एम फॉर मसल्स। तो मीडियल सरफेस सारे के सारे मसल से रिलेट करती है। सो बिफोर बैकवर्ड किन किन मसल से रिलेट कर रही होती है, सबसे पहले हमारे पास आता है माइलोहायोइड मसल, फिर हमारे पास आता है हायोग्लोसस मसल, और फिर हमारे पास आता है स्टाइलोग्लोसस मसल, ठीक है। तो हमने रिलेशंस की बात की, सुपरफिशियल सरफेस के रिलेशंस क्या आते हैं हमारे पास, इन्फीरियर सरफेस के लिए हमारे पास स्किन थी, हमारे पास प्लेटिज्मा था, सर्वाइकल ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व थी, हमारे पास डीप फेशिया था, फेशियल वेन थी और सबमेंडिबुलर लिम्फ नोड से, राइट। फिर हमारे पास लैटरल सरफेस में सबमेंडिबुलर फोसा था, हमारे पास मीडियल टेरिगोइड मसल की इंसर्शन थी, और हमारे पास फेशियल आर्टरी थी, राइट। देन हमारे पास मीडियल सरफेस में हमने बात की थी कि एम फॉर मसल्स, तो हमारे पास मीडियल सरफेस में सारे मसल्स होंगे। तो बिफोर बैकवर्ड्स हमारे पास कौन कौन से मसल्स हैं, वी हैव द माइलोहॉइड, वी हैव द हायोग्लोसस एंड वी हैव द स्टाइलोग्लोसस मसल, राइट। अब हमने बात करनी है अबाउट द डीपर पार्ट, ठीक है। तो डीपर पार्ट जो होता है वो यहाँ पे कह रहे हैं वो स्मॉलर इन साइज होते हैं देन द सुपरफिशियल पार्ट, राइट। और जो डीपर पार्ट होता है ना, ये देखो अभी हमने बात की थी, ये डीपर पार्ट है, तो आपके पास ये इसके ऊपर पड़ा हुआ है माइलोहॉइड मसल। तो डीपर पार्ट जो होता है इट इज़ डीप टू दी माइलोहॉइड मसल, बट देखो दिस इज द हायोग्लोसस मसल, राइट। सो इट इज़ डीपर टू द माइलोहॉइड बट सुपरफिशियल टू दी हायोग्लोसस मसल, ठीक है। तो यहीं पे वो यहाँ पे बात कर रहे हैं कि दिस पार्ट जो होता है हमारे पास इट लाइज डीप टू द माइलोहॉइड बट सुपरफिशियल टू द हायोग्लोसस एंड अदर मसल इज द स्टाइलोग्लोसस मसल, राइट। सो this part lies deep to the mylohyoid but superficial to the hyoglossus and the styloglossus muscle। अब हमने बात की थी हमारे पास जो सुपरफिशियल पार्ट था उसकी एक्सटेंशंस कहाँ जा रही थी, हमारे पास सुपीरियरली जा रही थी और हमारे पास इन्फीरियरली जा रही थी। बट हमारे पास जो यहाँ पे डी पार्ट है ये एंटीरियरली एक्सटेंड कर रहा होता है और आपके पास पोस्टीरियरली एक्सटेंड कर रहा होता है। तो एंटीरियरली अगर हम देखें इस डायग्राम से, अगर हम इसको समझें तो ये हमारे पास ये एंटीरियर एंड है। तो एंटीरियर एंड ये आपके पास सबलिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड हुआ है, तो एंटीरियर एंड कहाँ जा रहा है, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द सबलिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड से रिलेट करेगा। और आपके पास इसका जो पोस्टीरियर एंड होगा, पोस्टीरियर एंड किससे मिल रहा होता है, एट द पोस्टीरियर अराउंड द पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ दिस माइलोहॉइड मसल टू दी, इसके सुपरफिशियल पार्ट से क्या हो रहा है, कॉन्टिन्यू हो रहा है। तो यही बात हम यहाँ पे करेंगे, जो एंटीरियरली वो क्या कर रहा है, एक्सटेंड कर रहा होता है अप टू दी पोस्टीरियर एंड ऑफ दी सबलिंगुअल ग्लैंड, और पोस्टीरियरली क्या बात हो रहा है, वो कॉन्टिन्यूस हो रहा है विद द सुपरफिशियल पार्ट अराउंड द पोस्टीरियर बेली ऑफ द पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द माइलोहॉइड मसल, राइट। अब हमने डीप पार्ट के रिलेशंस देखने हैं, तो डीप पार्ट के रिलेशन भी हम यहाँ से समझ सकते हैं कि डीप पार्ट देखिए आपके पास जो डीप पार्ट है कहाँ पर आ हुआ है, बिटवीन द माइलोहॉइड एंड द हायोग्लोसस मसल। यहीं पे वो बात कर रहे हैं कि इट इज़ प्रेजेंट बिटवीन द माइलोहॉइड एंड द हायोग्लोसस मसल। तो इसके कुछ रिलेशंस होते हैं, इसके मीडियल, ये देखो हाँ, ये हमारे जो डायग्राम है इसके ये एंटीरियर साइड है, ये पोस्टीरियर है, ये मीडियल है और ये लैटरल साइड है। तो ये हमारे पास मसल के मीडियली क्या, इस हमारे पास जो डीपर पार्ट के मीडियली क्या पड़ा हुआ है, हायोग्लोसस मसल, और इसके लैटरली क्या पड़ा हुआ है, मायोग्लोसस मसल, ठीक है। यहीं पे वो कह रहे हैं इसके लैटरली वी हैव द माइलोहॉइड एंड द मीडियली वी हैव द हायोग्लोसस मसल। देन अबव, इस डायग्राम में हमें इसके इस पार्ट के अबव क्या पड़ा हुआ है और इस पार्ट के बिलो क्या पड़ा हुआ है ये नज़र नहीं आ रहा। तो क्या होता है, इस पार्ट के अबव हमारे पास लिंगुअल नर्व होती है और इसके सबमेंडिबुलर गैंग्लियन विद, ठीक है, और जो बिलो है इसके हाइपोग्लोसल नर्व होती है। तो हमने डीप पार्ट के बारे में बताया कि स्मॉलर होता है इन साइज देन सुपरफिशियल पार्ट, और इसके एक्सटेंशंस एंटीरियरली हो रही होती हैं और पोस्टीरियरली कहाँ पे जा रहा होता है। फिर इसके हमने रिलेशंस बताया, लैटरली किससे रिलेट कर रहा है, मीडियली, अबव और बिलो। अब हमने बात करनी है अबाउट सबमेंडिबुलर डक्ट। सबमेंडिबुलर डक्ट इज ऑल्सो कॉल्ड दी वाटन्स डक्ट, ठीक है, इसको वाटन्स डक्ट भी कहते हैं। इसके कुछ फीचर्स होते हैं, क्या होते हैं कि ये आपके पास थिन वॉल होती है, ठीक है,
5 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है थिन वॉल और 5 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। और अब ये आपके पास जो मैंडिबुलर सब मैंडिबुलर जो आपके पास डक्ट है वाटरन्स डक्ट जिसे हम कह रहे हैं कहाँ से मर्ज हो रही होती है, वो मर्ज हो रही होती है फ्रॉम दी एंटीरियर एंड ऑफ द डीपर पार्ट। ठीक है, ये आपके पास डीपर पार्ट था, ये डीपर पार्ट सब मैंने इसके एंटीरियर एंड से राइज करेगी और फॉरवर्ड जाएगी ऑन दी हायोग्लोसस मसल। ठीक है, अब हमने बात की थी कि इसके बाद डीपर पार्ट के ऊपर क्या था, या लिंगुअल नर्व थी और इसके नीचे क्या थी, हाइपोग्लोसल नर्व थी। सो इन दोनों नर्व्स के बिटवीन ये मूव करेगी आगे, ऊपर लिंगुअल और नीचे हाइपोग्लोसल नर्व। सो इट इमर्ज एट द एंटीरियर एंड ऑफ द डी पार्ट। ये हमने अभी देखा डायग्राम में, इट इमर्ज कहाँ कर रहा है, एंटीरियर एंड ऑफ द डी पार्ट ऑफ द ग्लैंड, फॉरवर्ड जा रहा है ऑन दी हायोग्लोसस मसल बिटवीन द लिंगुअल एंड द हाइपोग्लोसल नर्व। ये बात की थी हमने अभी। फिर वो कह रहे हैं कि इट इज़ क्रॉस्ड बाय द लिंगुअल नर्व, कहाँ पे, एट द एंटीरियर एंड ऑफ द हायोग्लोसस मसल। ठीक है, सो इट इज़ क्रॉस्ड बाय द लिंगुअल नर्व से क्रॉस करी क्योंकि हायोग्लोसस मसल के ऊपर जा रहा था। तो हायोग्लोसस मसल के जब एंटीरियर एंड पे पहुंचा है तो वहाँ पे से जो लिंगुअल नर्व इसके ऊपर थी वो इसको क्रॉस कर लेगी, राइट। अब अगर ये एक डक्ट है तो हमारे माउथ में कहीं ना कहीं जाकर ये ओपन भी होगी, तो इसकी ओपनिंग कहाँ पे होती है, हमारे फ्लोर ऑफ द माउथ में होगी इसकी ओपनिंग। ठीक है, इट इज़ ओपन एट द फ्लोर ऑफ द माउथ। अगर मैं एक टंग बनाऊँ यहाँ पे, समझो ये टंग है बट इसको एलिवेटेड पोजिशन में, राइट। तो ये टंग फ्लोर ऑफ द माउथ से, हमारे फ्लोर ऑफ द माउथ से ऐसे कनेक्टेड होती है बाय दिस बैंड ऑफ द टिश्यू विच इज कॉल्ड द फ्रेन्युलम, राइट। सो वही वो कह रहे हैं कि ऑन द फ्लोर ऑफ द माउथ, ये कहाँ पे, ऑन द फ्लोर ऑफ द माउथ पे खुली होती है, ऑन द ओपन हो रही होती है ऑन द समिट ऑफ द सबलिंगुअल पेपिला। आपके पास सबलिंगुअल पेपिला होते हैं, सबलिंगुअल पेपिला के समिट पे, और वो भी कहाँ पे, एट द साइड ऑफ द फ्रेन्युलम। यहाँ पे आपके पास सब मैंडिबुलर सलाइवरी ग्लैंड की क्या होती है, ओपनिंग होती है। ठीक है, फिर हमने इसकी ब्लड सप्लाई की बात करनी है। ब्लड सप्लाई इज़ क्वाइट ईजी। कैसे कि इसकी जो हमने बात क्या करना है, ब्लड सप्लाई में फेशियल आर्टरी है जो इसको ब्लड सप्लाई कर रही होती है, राइट। फेशियल आर्टरी दैट ग्रूव्स द पोस्टीरियर एंड ऑफ द सबमैंडिबुलर सलाइवरी ग्लैंड। इट इज़ नॉट क्वाइट इंपॉर्टेंट, आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि इसका ब्लड सप्लाई कहाँ से मिल रही है, फेशियल आर्टरी से। अब आर्टरी दे रही है तो फेशियल वेन, कॉमन फेशियल वेन, या आपके पास लिंगुअल वेन होगी, आपके पास क्या करेंगे इसमें से, वेनस ड्रेनेज। सो आर्टीरियल सप्लाईज फ्रॉम फेशियल आर्टरी, और वेन्स कहाँ पे ड्रेन करेंगे, आपके पास कॉमन फेशियल या लिंगुअल वेन। Lymphatic drainage is also very easy in much way that lymphatic, अब इसका नाम क्या था हमारे पास, सब मैंडिबुलर सलाइवरी ग्लैंड, तो इसको यहाँ पे ड्रेनेज कहाँ पे जाएगी, सब मैंडिबुलर लिम्फ नोड में। ब्लड सप्लाई में आर्टीरियल सप्लाई फेशियल आर्टरी, वेन्स में आपके पास कॉमन फेशियल और लिंगुअल वेन थी, लिम्फेटिक ड्रेनेज में आपके पास सब मैंडिबुलर लिम्फ नोड्स थे। वो इसके बाद आ जाती है नर्व सप्लाई। नर्व सप्लाई की अगर हम बात करें तो ब्रांचेज आपके पास उसके नर्व्स जो ब्रांचेज इसमें आनी है वो कहाँ से आएंगी, सब मैंडिबुलर गैंग्लियन। और सब मैंडिबुलर गैंग्लियन का हमने यहाँ पे एक रिलेशन पढ़ा था कि आपके पास जो सब नहीं एक सेकेंड, सो सब मैंडिबुलर गैंग्लियन जो होता है, नर्व सप्लाई कहाँ से आनी होती है, सब मैंडिबुलर गैंग्लियन। अब सब मैंडिबुलर गैंग्लियन के हमें पता है कौन से रूट्स होते हैं, सिक्रीटो मोटर रूट होती है, आपके पास सेंसरी रूट होती है, और आपके पास सिंपैथेटिक रूट होती है। तो इसके पास सिक्रीटो मोटर फाइबर्स आएंगे, ठीक है। फिर आपके पास सेंसरी फाइबर्स आएंगे, सेंसरी फाइबर्स आपके पास कहाँ से आएंगे, लिंगुअल नर्व से आएंगे। ये बात याद रखनी कि अक्सर बच्चे भूल जाते हैं कि आपके पास ये सेंसरी फाइबर्स कौन सी नर्व दे रही है और वेसोमोटर कौन सी दे रही है, ठीक है। अब उस सब मैंडिबुलर गैंग्लियन ने आपके पास क्या दे दिया, सिक्रीटो मोटर फाइबर्स की एक रूट दी, फिर आपके पास सेंसरी फाइबर्स दिए। सेंसरी फाइबर्स कहाँ से आ रहे हैं, लिंगुअल नर्व से आ रहे हैं आपके पास, ठीक है। देन आपके पास क्या होता है, वेजोमोटर। वेजोमोटर हमें पता है हमेशा सिंपैथेटिक फाइबर्स जो होते हैं, और वो कहाँ कौन से प्लेक्सस से आ रहा है, जो प्लेक्सस कहाँ पे, अराउंड द फेशियल आर्टरी, ठीक है। फिर हमने बात करी नर्व सप्लाई में, देखा कि आपके पास हमने देखा सिक्रीटो मोटर फाइबर्स आ रहे होते हैं। तो इस ग्लैंड के जो सिक्रीटो मोटर फाइबर्स होते हैं ना, उनका ये पाथवे है। सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से होना है, सुपीरियर सेलिब्रेटरी न्यूक्लियस से। सुपीरियर सेलिब्रेटरी न्यूक्लियस से कहाँ जाएंगे हम, नर्वस इंटरमीडियस पे। नर्वस इंटरमीडियस के बाद हमें पता क्या बनती है, फेशियल नर्व। और फेशियल नर्व की एक ब्रांच है कॉर्डा टिम्पेनाई। अब जब हमने टेस्ट सेंसेशन फ्रॉम द पढ़ा था एंटीरियर टूथ ऑफ द टंग, तो हमने वहाँ पे भी पढ़ा था कि जो आपके पास कॉर्डा टिम्पेनाई होती है वो अपने फाइबर्स देती है किसको, लिंगुअल नर्व को, ठीक है। अब वो लिंगुअल नर्व कहाँ जाएगी, आपके पास सब मैंडिबुलर गैंग्लियन के पास जाएगी। प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स हैं इसके पास, जब सब मैंडिबुलर गैंग्लियन के पास गई वहाँ पर रिले करेगी तो वहाँ से पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स अराइज करेंगे, और वो कहाँ चले जाएंगे, सब मैंडिबुलर एज वेल एज द सब लिंगुअल ग्लैंड। तो ये आपके पास क्या, सिक्रीटो मोटर पाथवे टू दी सब मैंडिबुलर
ग्लैंड, ठीक है। तो हमने इसकी ब्लड सप्लाई पढ़ी विच क्या थी, फेशियल आर्टरी सप्लाई करेगी और कॉमन फेशियल वेन या लिंगुअल वेन में इसकी वीनस ड्रेनेज होगी। लिम्फेटिक ड्रेनेज सबमैंडिबुलर लिम्फ नोड्स से। नर्व सप्लाई आपके पास सबमैंडिबुलर गैंग्लियन की ब्रांचेस थी जो क्या थी, सिक्रीटोमोटर फाइबर, सेंसिटिव फाइबर जो कहाँ से आ रहे थे हमारे पास, यस लिंगुअल नर्व से। और वेजोमोटर कहाँ से आ रही थी आपके पास, फ्रॉम द प्लेक्सस अराउंड द फेशियल आर्टरी। तो फिर हमने ये बात की अबाउट द सिक्रीटोमोटर पाथवे। नाउ अब हमारे पास जो आखिरी टॉपिक है वो है अबाउट क्लिनिकल्स, ठीक है। तो हमने क्लिनिकल्स में बात की सबसे पहले क्लिनिकल जो हमारा है कि अगर सबमैंडिबुलर गैंग्लियो सबमैंडिबुलर जो ग्लैंड है इसमें कोई आपके पास कैलकुलस या ट्यूमर हो जाता है आपके पास, ठीक है। तो अगर ट्यूमर हो जाए तो हमें ग्लैंड को क्या करना पड़ता है, एक्साइज करना पड़ता है। जब हमें ग्लैंड को एक्साइज करना पड़ता है तो कहते हैं कि हमें 4 सेंटीमीटर बिलो हमें जो है वो इंसिजन देनी है, ठीक है। वी हैव टू गिव द इंसिजन 4 सेंटीमीटर बिलो द एंगल ऑफ द मैंडिबल टू एक्साइज द submandibular gland. So the question arises here, why we need to give the incision 4 centimeter below the angle of the mandible? The answer is the marginal mandibular branch of the facial nerve, which is the fifth branch of the facial nerve होती है ना, there's a fourth one, sorry. So the marginal mandibular branch of the facial nerve that pass posterior inferior to the angle of the jaw before crossing the jaw. सपोज करो अगर आपके पास रफ सी ड्राइंग है बाय द वे मेरी, अगर आपके पास ये एंगल ऑफ द जॉ है, आप सपोज करो ये नर्व जो है इसके पोस्टीरियर और इन्फीरियर होती है बिफोर क्रॉसिंग, राइट। सो दैट्स वाई हम क्या करते हैं 4 सेंटीमीटर बिलो द एंगल ऑफ द मैंडिबल इंसिजन देते हैं ताकि हम इस नर्व को डैमेज ना कर दें, ठीक है। और फिर अच्छा ये फर्स्ट था, फिर हम कह रहे हैं कि अब यही जो मार्जिनल मैंडिबल ब्रांच ऑफ द फेशियल नर्व है क्या कर रही होती है, सब मैंडिबुलर गैंग जो लिम्फ नोड्स है ना उनको भी क्रॉस कर रही है। तो अगर कह रहे हैं अगर आपको लिम्फ नोड्स सब मैंडिबल लिम्फ नोड्स की कभी अगर आपको बायोप्सी करनी पड़ जाए तो उस टाइम भी हमें केयरफुल रहना चाहिए कि कहीं हम इस नर्व को डैमेज ना कर दें, ठीक है। सो यहाँ से कनेक्ट हो गया, दिस नर्व ऑल्सो क्रॉसेज द सब मैंडिबुलर लिम्फ नोड्स, सो वी शुड बी केयरफुल बाय डूइंग बायोप्सी ऑफ दीज नोड्स, ठीक है। सो अनदर क्वेश्चन इज, कैन वी पाल्पेट दिस ग्लैंड? Yeah, the answer is yes, we can. But how? Another question is how we can palpate this gland? So answer is that by putting one finger within the mouth and another finger outside. So हम कहेंगे एक फिंगर मुंह के अंदर रख लो, एक बाहर रख लो, बट कहाँ रखनी है ये भी तो होना चाहिए, बट इन रिलेशन टू दी पोजीशन ऑफ द ग्लैंड। हमें पता होना चाहिए हमारे सबमैंडिबुलर ग्लैंड किस रीजन में एलोकेट करे, उसी के अकॉर्डिंग उसी के रिलेशन में क्या करना है, एक फिंगर विद इन द माउथ एंड अदर आउटसाइड द माउथ रख के हम इसको बाय मैनुअली पाल्पेट कर सकते हैं, ठीक है। जब हम इसको पाल्पेट करेंगे तो हम किन किन चीज़ों को ऑब्जर्व कर सकते हैं। अगर आपके पास जो सबमैंडिबुलर लिम्फ नोड्स हैं, सबमैंडिबुलर लिम्फ नोड जो हमारे विद इन दी ग्लैंड भी होते हैं ना, आउटसाइड दी ग्लैंड भी होते हैं, ठीक है। अगर उन सब जो लिम्फ नोड्स हैं अगर वो इनलार्ज हुए हुए हैं, इनलार्ज लिम्फ नोड्स होते हैं, हम उनको क्या कर सकते हैं, पाल्पेट कर सकते हैं बाय दिस मेथड, राइट। सो लास्ट वन इज सिक्रीशन ऑफ द सबमैंडिबुलर ग्लैंड इज मोर विस्कस। हमने शुरू में पढ़ा था कि जो सबमैंडिबुलर सलाइवरी ग्लैंड है ये क्या होता है, मिक्स्ड वैरायटी का है, मतलब इसमें सीरियस एसिनाई भी हैं और म्यूकस एसिनाई भी हैं, बट वो कह रहे हैं इसकी जो सिक्रीशन है इट इज़ मोर टुवर्ड्स द विस्कस इन नेचर होती है, राइट। तो जब उसकी सिक्रीशन मोर विस्कस है मतलब ज़्यादा चांसेस हैं कि वो ग्लैंड में गेटिंग कैल्कुलाई या स्मॉल स्टोन्स बन सकते हैं, राइट। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दी सबमैंडिबुलर ग्लैंड। If you like my video then share it maximally, like, comment and also subscribe my channel. दुआ में याद रखिएगा। और अब मैं नेक्स्ट वीडियो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा आपको मेरी वीडियो पसंद आई नहीं आई। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।